Hello dear students, I am Govind Lohia, Assistant Professor, Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur. Welcome to the part 2 of the solubility of drugs video. In first part we have gone through aspect of solubility, thermodynamic solubility, and there are so many definitions of solubility. Okay. In this part we are going to cover the mechanism of solute-solvent interactions, and if time permits then we can go with the ideal solubility parameters, but I am trying to cover both the aspect, mechanism of solute-solvent interaction and ideal solubility parameters. First of all, I am very sorry for being late to upload the video, but now onwards I am trying to upload the video on time. This is as per complete PCI syllabus, and there are so many books in the market which are published on the PCI syllabus, but I am going to cover entire part from the standard reference books and try to cover according to PCI syllabus as well as conceptualize. That means this can be helpful for your GPAT examination. So start with the solubility, that is mechanism of solute solvent interaction part. Okay, so we can directly go to the slide number. So mechanism of solute solvent interaction. Before starting the mechanism directly, I am just asking very random questions. Okay, it's just like interaction. हम सभी ने हमारे एक फ्रेंड्स बनाए हैं, और हम जो फ्रेंड्स बनाते हैं तो हम लोग फ्रेंड्स बनाते वक्त हम लोग बात करते हैं कि यार वो मेरे टाइप का नहीं है बंदा, या वो मेरे जान पहचान का नहीं है, या उसका थोड़ा नेचर अलग है ना. एट द सेम टाइम ये सभी के साथ होता है, और हम लोग उनके साथ ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाते हैं जिनकी मेंटालिटी बोलो या जिनका हमारा बॉन्ड बोलो, रिलेशन बोलो, जो हमसे मिक्स होने को तैयार है, उनके साथ हम लोग मिक्स होते हैं. ये बहुत कॉमन आपको ध्यान में दिखता है. बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है ना, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूशन. एक चीज रहती है कि कोई हमारे इसमें ग्रुप भी बहुत रहते हैं, ये उस ग्रुप वो उस ग्रुप, और कोई एक बंदा रहता है कि जो दोनों ग्रुप में कॉमन रहता है. सो वो दोनों ग्रुप को लेके चलता है, या दोनों को साथ में मैनेज भी करता है, या दोनों को मिलाने की भी कोशिश करता है. तो दैट विल एक्ट एज अ को-सॉल्वेंट. वो जो बंदा है वो दोनों को मिक्स करने की जो कोशिश करता है, दोनों ग्रुप को, एक ऑयल है और एक वाटर है, और दोनों को मिक्स करने का जो काम करता है वो को-सॉल्वेंट करके काम करेगा. सो this same funda we can apply over here, mechanism of solute solvent interaction. So first we directly go with the solvent and solute interaction, how solvent interact with solute or vice versa. Okay, let's start. So in pre or early formulation, selection of most suitable solvent is based on the principle of if you are going to make a formulation, and for that formulation you need to select a solvent system, and for that reason this principle is like dissolves like. So you can start the answer from this statement in your examination. So whatever the pre-formulation or early formulation study, we go on the principle of like dissolves like. That is, solute dissolve best in a solvent with a similar chemical properties, or two substances with a similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other. As अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि हमारे फ्रेंडशिप के बारे में, वैसे ही हम लोग यहाँ बात करेंगे. अगर मैं बात करूँ कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जैसे H2O ले लो आप, है ना. H2O अल्कोहल के साथ, यानी जिसमें OH ग्रुप है उसके साथ कंप्लीटली मिसिबल हो रहा है. यहाँ पर लोअर अल्कोहल ले लो आप, मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना. तो इसमें मिसिबिलिटी है क्योंकि दोनों के अगर आप देखो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और OH ग्रुप है ना, और ऑलमोस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी उनके लाइकली टू बी सोल्यूबल विद ईच अदर. सो इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि सोल्यूट उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें इंटरमोलिकुलर. ये दिस इज ओनली फॉर, नॉट ओनली फॉर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अगर आप बात करोगे सोल्यूट, यहाँ पर जो लेसर अमाउंट में है वो सोल्यूट है, और जो मोर अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है. क्लियर. तो अल्कोहल विल बी एक्ट एज अ सोल्यूट ओवर हियर अगर अल्कोहल कम है तो, और वाटर विल बी एक्ट एज अ सॉल्वेंट. अगर हम लोग बात करेंगे, आगे चलते हैं. पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन अ पोलर सॉल्वेंट, एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय पोलर?
पोलार का मतलब है कि यहां पर आप बात करोगे कि दो पोल बनना, पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लाइक वाइज दो पोल। तो हम लोग यूजुअली केमिस्ट्री में या फिजिकल फार्मेसी में जो पोलार फंक्शन के बारे में बात करेंगे, दीज आर नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, ऐसे दो पोल बनना है ना। तो अगर मुझे बात करना है यहाँ पर सॉल्ट के बारे में, तो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं यूजुअली NaCl। तो आप देखो NaCl में अगर मुझे पोल के बारे में बात करना है NaCl के बारे में, तो Na विल बी एक्ट एज अ पॉजिटिव, यस, एंड क्लोरीन विल बी एक्ट एज अ नेगेटिव, दैट्स इट। तो अगर हम लोग NaCl में दो पोल के बारे में बात करें तो कौन से दो पोल है पॉजिटिव, Na एंड नेगेटिव इज Cl। अगेन द सेम कंसेप्ट, अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे H विल बी एक्ट एज अ पॉजिटिव, OH विल बी एक्ट एज अ नेगेटिव। और क्योंकि दोनों भी वाटर इज अ पोलर इन नेचर, पोलर सॉल्वेंट दो पोल है, हाइड्रोजन एंड OH, वैसे ही NaCl में दो पोल है, Na पॉजिटिव Cl माइनस। सो वी कैन से दैट कि पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। एंड एट द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग दूसरे वे में बात करेंगे, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक नैप्थलीन। नैप्थलीन इज जस्ट लाइक, वो हम लोग नैप्थलीन बॉल्स यूज करते हैं जिसमें स्मेल आती है नैप्थलीन बहुत अच्छी, वो नैप्थलीन डिसॉल्व इन अ बेंजीन। आप वो नैप्थलीन डालो पानी में, वो डिसॉल्व नहीं होगा नैप्थलीन बॉल्स, है ना, क्योंकि नैप्थलीन इज नॉन पोलर इन नेचर, इसमें कोई पोल ही नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अगर आप यहाँ देखोगे जैसे हम लोग बात करेंगे कि बेंजीन C6H12, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये पोलर इसलिए बनता है ग्रुप कोई भी कंपाउंड, क्योंकि Na का आप देखो तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा कि ये इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा जब बॉन्ड बनाएंगे ये, और ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और ये खींचने के बाद में क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे दो पोल बनेंगे। मगर अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम बात करेंगे नॉन पोलर में, आई नो दिस इज समहाउ मैं ज्यादा डिटेल में ले रहा हूं, बट जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने इस पार्ट को समझे, और जिनको ध्यान में आ चुका है ये थोड़ा आप फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ओके। बट कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, और इस वजह से ये क्या है कि किसी का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास खींचते नहीं है, और उस वजह से ये नॉन पोलर बिहेवियर बनेगा। तो देखो आप बेंजीन में हमको भी मालूम है C6H6 इज द बेंजीन स्ट्रक्चर, और उस वजह से उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई। और इसमें नैप्थलीन नॉन पोलर में, नॉन पोलर सोल्यूट के अंदर, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। आगे चलते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, इफ द सॉल्वेंट इज A एंड द सोल्यूट इज B। ये क्वेश्चन आपको PCI सिलेबस में 5 मार्क के लिए नोट्स में आ सकता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का या मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूबिलिटी का। तो ये पूरे पॉइंट्स आपको उसमें लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ लाइक डिसॉल्व लाइक के साथ शुरू करेंगे, ये 2 या 3 पॉइंट, उसके बाद में ये एग्जांपल, लेट A बी द सॉल्वेंट एंड B इज द सोल्यूट, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या होंगी। अगर हम लोग A सॉल्वेंट ले रहे हैं तो आप देखो ध्यान से कि A और A ये एक इंटरेक्शन होगा, यानी सॉल्वेंट के एक मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगी, सोल्यूट का एक मॉलिक्यूल सोल्यूट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगी, यानी BB इंटरेक्शन। और अगर हम लोग ये दोनों मिक्स कर रहे हैं तो सोल्यूट का एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होगा, तो ये AB टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगी। तो दीज 3 इंटरेक्शन पॉसिबल, ओके। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इसमें से ऑकर होंगी। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि AA, दैट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरेक्शन। सही है। जैसे कि बेंजीन और वाटर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो वेयर बेंजीन मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनिट्रेट दी क्लोजली बाउंड वाटर मॉलिक्यूल, बेंजीन विल बी एक्ट एज अ सोल्यूट हियर। तो बेंजीन और वाटर का जो बॉन्ड रहेगा या इंटरेक्शन रहेगा ये बहुत ही कमजोर है, नहीं के बराबर है। और A और A यानी वाटर का इंटरेक्शन वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो ये इसमें पेनिट्रेट नहीं होगा बेंजीन सोल्यूट मॉलिक्यूल, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि हमारा सोल्यूट का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, B और B का इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रांग कंपेरेटिवली टू A एंड A इंटरेक्शन। तो इस जगह पे क्या होगा कि BB मतलब सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रांग देन द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। देन जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं NaCl। अब NaCl यहां पर सोल्यूट है,
क्या है, सोल्यूट। और Na और Cl का इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर मैं NaCl बेंजीन में डालूं जो कि यहाँ पर सॉल्वेंट है, यही एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया जहां की बेंजीन हमारा सोल्यूट था, है ना, क्योंकि बेंजीन कम क्वांटिटी में था। द क्वांटिटी विच अपीयर्स इन अ स्मॉलर will act as a solute and which will be in the more amount that will act as a solvent, है ना। तो यहाँ पर NaCl is act as a smaller amount, तो ये हमने देखा। आप मिसकंफ्यूज, दैट मीन्स आप कंफ्यूज मत होना कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, सोल्यूट कैन बी, हमने इसके पहले भी देखा, इसके पहले सोल्यूट कैन बी अ सॉलिड, सोल्यूट कैन बी अ लिक्विड एंड सोल्यूट कैन बी अ गैस इटसेल्फ। जैसे कि आप कार्बोनेटेड बीवरेजेस देखते हो, उसके अंदर सोल्यूट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व किया है, तो यू कैन से दैट कि सर बेंजीन कैसे सोल्यूट होगा, है ना। तो ये यहाँ क्लियर कर दिया। यहाँ पर मैं और एक बार बता दूं कि NaCl जो कि आयनिक सॉलिड है, ये सोल्यूट है और वो उसका इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जो कि बेंजीन में डालने के बाद में कोई उसमें वो अपने इसको तोड़ेगा नहीं। दैट मीन्स क्रिस्टल्स ऑफ NaCl विल बी एज इट इज ओवर देयर, है ना। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से वो बेंजीन उसको तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। आगे चलते, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि A-B दैट मीन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं NaCl का, है ना, तो NaCl नो डाउट कोवेलेंट सॉलिड है ना, आयनिक, सॉरी NaCl इज आयनिक सॉलिड, Na विल एक्ट एज अ पॉजिटिव, Cl विल एक्ट एज अ नेगेटिव, मगर ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। अब यहां पर क्या हुआ कि एक Na के मॉलिक्यूल को 6 यानी 6 वाटर मॉलिक्यूल घेर के रखते हैं Na पॉजिटिव को, है ना, विद द हेल्प ऑफ OH माइनस OH माइनस OH माइनस। वैसे ही क्लोरीन को साथ H पॉजिटिव ऐसे घेर के रखते हैं इसको। तो दैट मीन्स ये इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, किसकी, Na की वाटर के साथ, Cl की वाटर के साथ। दैट मीन्स AB इंटरेक्शन, that means solute and solvent interaction is much more stronger than solvent solvent interaction and solute solute interaction, ठीक है। यहां तक के क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नो पोलर सॉल्वेंट, सो पोलर सॉल्वेंट ये भी आपको उसी एग्जाम में क्लब करना है, पोलर सॉल्वेंट के बारे में। अब पोलर सॉल्वेंट के बारे में अगर मुझे बात करना है यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छी से ध्यान में रखना पड़ेगा कि द सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इज ड्यू टू द लार्ज मेजर्स टू द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ना। और पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट कैसे आती है, तो डायपोल मूवमेंट की वजह से। आपको याद होगा डायपोल मूवमेंट जो रहता है, इसको हम लोग डीबे यूनिट में मेजर करते हैं, है ना। तो ये कुछ जीपैट के क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो कि डायपोल मूवमेंट इज मेजर इन डीबे यूनिट। यहां आप देखो, अगर दो पोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनता है, तो उस वाले मॉलिक्यूल्स में डायपोल मूवमेंट क्रिएट होती है। ओके, सो यहां आगे चलते हैं। पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स आयनिक सोल्यूट्स एंड अदर पोलर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमने बात किया था कि पोलर सॉल्वेंट आयनिक सोल्यूट और पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करेगा। इसके आगे चलते हैं। यहां हम लोग है ना थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और एक हिल्डब्रांड फाइंडिंग्स के बारे में बात करते हैं कि हिल्डब्रांड ने क्या बताया। अभी तक तो आप बता रहे हो कि सर पोलर सॉल्वेंट जो है ना, ये solubility of drug is due to the large measure of polarity of the solvent in dipole moment, है ना। और and dipole moment that is due to the dipole moment हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स आयनिक सोल्यूट एंड पोलर सब्सटेंस। हिल्डब्रांड साहब ने सोल्युबिलिटी पे बहुत अच्छा काम किया और हिल्डब्रांड सोल्युबिलिटी के आइडियल पैरामीटर्स भी ढूंढे। हिल्डब्रांड सर ने क्या बताया कि ओनली दी डायपोल मूवमेंट अलोन इज नॉट एडिक्वेट टू एक्सप्लेन द सोल्युबिलिटी ऑफ पोलर सब्सटेंस। तो फिर उसके साथ आपको क्या समझना पड़ेगा कि आप तो बोल रहे हो कि सर पोलर डायपोल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, आप बोल रहे हो कि पोलैरिटी इंपॉर्टेंट। हिल्डब्रांड साहब ने बताया कि नहीं, आप सिर्फ डायपोल मूवमेंट या पोलैरिटी को नहीं कंसीडर कर सकते। अपार्ट ये दिस इज नो डाउट वन ऑफ द पैरामीटर, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कंसीडर अनदर आल्सो। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की एबिलिटी अगर है तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू द पोलैरिटी, है ना, दैट इज हाई डायपोल मूवमेंट। आगे चलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा होपफुली। ये किसने बताया? हिल्डब्रांड सर ने। आगे चलते हैं। सो वाटर डिसॉल्व्स फिनॉल्स, अल्कोहल्स, अल्डेहाइड, कीटोन्स, अमाइन्स एंड अदर ऑक्सीजन्स एंड नाइट्रोजन्स कंटेनिंग कंपाउंड दैट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो ये हमें पता चला कि
वाटर, फिनॉल्स, अल्कोहल्स और इतनी लार्ज रेंज इसमें कैसे डिजोल्व हो रही है? तो ये तो डाइपोल मूवमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर, बट मोर सिग्निफिकेंट फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर हियर। तो जैसे आप यहाँ देखो अल्कोहल के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ROH है, दैट मीन्स अल्कोहल, ROH इज अल्कोहल, HOH इज वाटर। तो यहाँ अगर आप देखोगे ये पार्टली नेगेटिव बियर करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज पार्टली पॉजिटिव, क्योंकि पोलर कंपाउंड है ये, और इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता इसका, दैट मीन्स अल्कोहल का ऑक्सीजन विथ वाटर के हाइड्रोजन के साथ। तो ये डायग्राम आप वहां पे निकालना, ये पॉइंट्स लिख के डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेंगी। एट द सेम टाइम अल्डेहाइड का भी आप बना सकते हो, एट द सेम टाइम आप कीटोन का भी बना सकते हो इसी वे में, एंड एट द सेम टाइम यू कैन दैट मीन्स अमाइन के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलर। अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट का आगे देखते हैं, नॉट ओनली दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट the solubility of substance also depend on the structural features such as the ratio of polar to the non-polar group of the molecule। कभी कभी क्या है, हम लोग अगर कंपाउंड लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, तो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड इतना सिंपल छोटा सा कंपाउंड नहीं होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन भी बहुत ज्यादा होंगी, किसी में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, OH ग्रुप ज्यादा होंगे। तो क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं कुछ एक ही कंपाउंड में, और कुछ जो होते हैं नॉन पोलर। जैसे हाइड्रोकार्बन की लंबी सी चेन है, इफ द चेन इज लॉन्ग देन इट बिकम्स अ नॉन पोलर, हाइड्रोकार्बन की चेन है ना। और पोलर ग्रुप मतलब OH ग्रुप ज्यादा होना उसके अंदर, तो वो पोलर। तो अगर आपके कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन की चेन बहुत ज्यादा है तो आप बोलोगे कि उसमें नॉन पोलर ग्रुप ज्यादा है, और अगर आपके इसमें OH ग्रुप ज्यादा है तो यू कैन से दैट ये पोलर ग्रुप ज्यादा है। तो इस पे भी आपकी स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी। अभी तक तो हमने देखा कि सोल्यूबिलिटी डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करती है, और डाइपोल मूवमेंट यानी पोलैरिटी पे डिपेंड करती है, और ऐसे हमने बोला कि सोल्यूबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, और अभी हम लोग बता रहे कि ये पोलर और नॉन पोलर। नॉट ओनली दिस, एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंटरेक्शन ऑफ द सोल्यूशन। ये सब पोलर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो, एज द लेंथ ऑफ नॉन पोलर चेन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नॉन पोलर चेन जैसे जैसे बढ़ रही है एलिफेटिक अल्कोहल में, तो एज द लेंथ ऑफ चेन इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन वाटर डिक्रीजेस, क्योंकि वो नॉन पोलर बढ़ रहा है तो पोलर में इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। नाउ पोलर ग्रुप्स अगर मैं बात करूं कौन कौन से है यहाँ पर, आप देखो ये और एक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोलैरिटी के बारे में या कंपाउंड के बारे में, तो आप देखो यहाँ पर 2 OH ग्रुप है। यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे 1,2 इथेन डायोल, 1,2 प्रोपेन डायोल, 1,2 3 प्रोपेन डायोल, ये ग्लिसरीन है ना। तो ग्लिसरीन को या ग्लिसरॉल हम लोग जिसको बोलते हैं, तो जैसे जैसे आपका OH ग्रुप बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपके इसमें सोल्युबिलिटी हम लोग बोलेंगे बढ़ेंगी। तो व्हेन एडिशनल पोलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल देन दे आर शोइंग दैट द एडिशनल, जैसे कि हम लोग प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, टार्टारिक एसिड के भी में बात करेंगे, that solubility increases greatly in water। okay, now moving polar groups के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। now straight chain monohydroxy alcohol, aldehyde, ketones, acid and more than 4 or 5 carbon cannot enter into the hydrogen bonded structure of water। यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास एलिफेटिक चेन या कार्बन चेन बढ़ेंगी वैसे वैसे ये स्ट्रक्चर वाटर में जाने के लिए रेजिस्ट करेंगे, सोल्युबिलिटी इनकी कम कम होते जाएंगी। एक एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का ब्रांचिंग के। जैसे अगर ब्रांचिंग में मैं बात करूं, ब्रांचिंग एग्जांपल टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड एन ब्यूटिल अल्कोहल। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का इट इज ब्रांच, और एन ब्यूटिल अल्कोहल का अगर मैं देखूं तो इट इज अ स्ट्रेट चेन, है ना। तो अगर मुझे बात करना है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, है ना, मगर एन ब्यूटिल अल्कोहल इज नॉट मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। इसकी सोल्युबिलिटी का एक एक्सटेंड दिया है कि ये कुछ अमाउंट में, जैसे 8 ग्राम पर 100 ml सोल्यूबल होगा या 8 ml पर 100 ml में ये डिजोल्व हो सकता है, बट ये कोई भी कॉम्पोजिशन लो आप तो ये डिजोल्व हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ब्रांचिंग डेफिनेटली हेल्प्स फॉर द सोल्यूबलाइजेशन, बट स्ट्रेट चेन अगर हम लोग बात करेंगे दिस इज इंक्रीज द नॉन पोलैरिटी कैरेक्टर्स, है ना। तो ये नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज करता है और ये सोल्युबिलिटी नहीं होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलर सॉल्वेंट। अभी भी मैं रिपीट करता हूं फिर से एक बार कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट रिएक्शन है जिसमें हमें ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और हमने काफी पॉइंट अभी तक के कवर किए हैं इसमें मैकेनिज्म में यहाँ, और फिर हम लोग आए पोलर सॉल्वेंट के ऊपर, और अब हम लोग आ रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के ऊपर।
Okay, so this is polar solvent. Continue. Now moving toward the next, non-polar solvent. Non-polar solvents are unable to reduce the attraction between the ions. जैसे अभी हमने NaCl के बारे में बात की थी. नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा था वहां पर? बेंजीन. बेंजीन NaCl के दोनों के बीच का दो, दैट मीन सोल्यूट के बीच का, सोल्यूट के बीच का अट्रैक्शन कम कर ही नहीं सकता है ना, वो बिटवीन द आयंस नहीं कर सकता. दैट मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया आपने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना. और अगर आप देखो तो वाटर हैविंग द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप देखो उसको ब्राउज भी करो तो आपको पता चलेगा कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है. बहुत बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. अगर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग बात करेंगे, फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट आर अनेबल टू रिड्यूस द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब यहां हम लोग बात करते हैं कि ये बिकॉज ऑफ दिस दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. और जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं करेंगे वो कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट. तो ये पॉइंट को नोट डाउन करके रखो कि व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोटिक सॉल्वेंट. which solvent or those solvent which are unable to form hydrogen bond with non electrolytes are to be called as aprotic solvent. तो ये aprotic solvent में आएंगे सभी ना. नॉन पोलर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिसिबल ड्यू टू, अब आप बोलोगे कि सर ये फिर नॉन पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे मिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ? वो इसीलिए मिसिबल होते हैं क्योंकि इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है वहां पर. ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके जीपैट के हिसाब से बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देके देखना इसको. यहां पर नॉन पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, इंड्यूस्ड डायपोल. व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल? तो अगर आप यहां पे देखोगे जैसे नैप्थालिन, और हमने एग्जांपल लिया था बेंजीन का. नैप्थालिन में बेंजीन सोल्यूबल है, नैप्थालिन सोल्यूबल है बेंजीन के अंदर. तो ये क्यों सोल्यूबल है? तो इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है. इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि नैप्थालिन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोग बात करें जैसे यहां हम लोग ले लेते हैं कि ये नैप्थालिन का पार्ट होगा और इसको हमने डाला ये बेंजीन में, ठीक है. तो ये नैप्थालिन के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं बेंजीन के तरफ और बेंजीन के न्यूक्लियस की तरफ, और बेंजीन के कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं नैप्थालिन के न्यूक्लियस की तरफ. और इस वजह से वहां टेम्पररी है ना एक डायपोल क्रिएट होता है, क्योंकि वो तो पोलर है ही नहीं मगर टेम्पररी डायपोल क्रिएट हो रहा है. और वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है? वो इंड्यूस, ये नैप्थालिन बेंजीन में इंड्यूस कर रहा है, एट द सेम टाइम बेंजीन नैप्थालिन में इंड्यूस कर. अगर हम लोग दोनों को अलग कर दे तो फिर से वो नॉन पोलर है, यानी ये टेम्पररीली, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. क्लियर है? तो ये इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के वजह से क्या होगा यहां पर? वो सोल्यूबिलिटी, दैट मींस नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाएगा. जैसे कि हम लोग इसमें दूसरा और एक चीज है, क्या हम लोग बताएंगे कि ये क्यों ऐसे हो सकता है? तो द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर kept non-polar solvent through a weak van der Waal or London force types of forces. तो ये weak attraction forces है, van der Waal force जिसको हम लोग लंदन फोर्स बोलते हैं. तो ये इस वजह से इसके अंदर रहते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि नॉन पोलर यानी क्या है? लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके अंदर ये कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन और वंडर वाल्व टाइप. ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नाउ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर. सॉल्यूशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन. यू कैन कोट द एग्जांपल अबो. नैप्थालिन इन बेंजीन. ओके, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल्स हम लोग अगर बात करें, एंड कैस्टर ऑयल. ओके, सो यहां तक हो गया नॉन पोलर. अब आगे बढ़ते हैं सेमी पोलर. सेमी पोलर का मतलब अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कीटोन और अल्कोहल. ये कीटोन और अल्कोहल है, इट कैन इंड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. अभी तक तो हमने यहां पर बात किया था कि ये नॉन पोलर ही इंड्यूस कर रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट और सोल्यूट के अंदर. दैट मीन्स सोल्यूट इंड्यूस कर रहा है सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्वेंट इंड्यूस कर रहा है सोल्यूट के अंदर, नॉन पोलर ही. तो ये इंड्यूस था. मगर हम लोग यहां क्या बात कर रहे हैं अभी आगे के इसमें सेमीपोलर में, कि सेमीपोलर सॉल्वेंट सच एज कीटोन एंड अल्कोहल्स कैन इंड्यूस अ सर्टेन डिग्री ऑफ
पोलैरिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब अगर मैं इसको बेंजीन में डालूं तो ये बेंजीन में कुछ पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन के अंदर हम लोग बेंजीन इज सोल्यूबल इन अल्कोहल, क्यों सोल्यूबल हुआ, क्योंकि ये इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है। ओके, नाउ they can act as an intermediate solvent to bring the about the miscibility of polar and non polar liquid। जैसे हमने शुरुआत में ही एक फ्रेंड सर्कल का डिस्कशन किया था और वहां मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग देखें तो कुछ पर्सन ऐसा होता है कि जो इस ग्रुप में और इस ग्रुप में दोनों में भी एक्ट करता है और दोनों को कोशिश करता है कि दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रहे और दोनों ग्रुप के एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रहे, एंड दैट विल एक्ट एज अ को सॉल्वेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सेमी पोलर सॉल्वेंट है। और यहां पर भी ये दोनों के बीच में दे कैन एक्ट इंटरमीडिएट सॉल्वेंट टू ब्रिंग अबाउट द मिसिबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड्स। एग्जांपल एसीटोन ले लो, कीटोन, क्योंकि ये कीटोन का पार्ट है। इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर, अगर आप सिर्फ ईथर और वाटर मिक्स करो तो ये मिसिबल नहीं है, मगर उसमें आप थोड़ा सा एसीटोन डाल दो तो ईथर इज मिसिबल विथ वाटर इन सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट। ओके, क्लियर? सो दिस इज अबाउट सेमी पोलर। आगे चलते, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हैज बीन शोड टू इंक्रीज द म्यूचुअल सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। अब यहाँ टर्नरी फेज डायग्राम आपको दिखती है, अगर आप देखोगे आपके फिजिकल फार्मेसी का जो बुक है मार्टिन रेफरेंस बुक, ऐसे टर्नरी फेज डायग्राम है। हर अपेक्स पे उन्होंने एक एक चीज ली है, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिया है H2O, यहाँ पे उन्होंने लिया है पेपरमेंट ऑयल और यहाँ पे उन्होंने लिया है से कंसिडर करो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, और इनका एक कॉम्बिनेशन आता है जहां पर इन ऑल प्रोपोर्शन पेपरमेंट ऑयल इज मिसिबल विद द वाटर एंड एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो ये आपको टर्नरी फेज डायग्राम के साथ करना पड़ता है। ये नो डाउट थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से थोड़ा आपको टफ जाएगा ये टर्नरी फेज डायग्राम का, मगर ये ध्यान में रखो कि ऐसी चीजें आपको एमफार्म में या आपके फोर्थ ईयर में आपको टर्नरी फेज डायग्राम का यूज करना पड़े सोल्युबिलिटी के लिए, या आप कभी इंडस्ट्री में कहीं जॉब को जाओ तो वहां पर भी आपको ये सब चीजें काम में आएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अप टिल नाउ सेमी पोलर सॉल्वेंट। ओके, नाउ ये कुछ हम लोग देखते हैं पोलैरिटी ऑफ सब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दैट रेडिली डिसॉल्व इन ईच क्लास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप देखो तो मैंने बोला था ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर सबसे हाई है, और वो भी मैंने आपको बताया था कि कितना है, तो वो 80 है ना। उसके बाद अगर आप देखो मिनरल ऑयल 0, जिसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 0 है। आप उसके ऊपर जाओ तो हेक्सेन, बेंजीन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें ही इनकी 5, अल्डिहाइड कीटोन्स 20, मिथाइल। तो ये अगर इसमें के कुछ एग्जांपल्स अगर आप आपके पेपर में कोट करो ना, तो दिस इज फ्रॉम द मार्टिन, द टेबल इज फ्रॉम मार्टिन, so it will give impact to your answer, definitely the evaluator will gives out of mark। और कौन सी बड़ी मुश्किल है, वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग बार बार यूज करते हैं, देखते हैं 80 आता है तो लिखना, मगर गलत मत लिख के आना, है ना। थोड़ी बहुत चीजें याद रखो, वाटर की रख लो, मिनरल ऑयल की 0 हो गई, है ना, बेंजीन की 5 हो गई, अल्डिहाइड कीटोन्स की 20 हो गई, एंड ग्लाइकॉल्स मतलब ग्लिसरीन जो है वो 50 है, अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड। ओके, तो हम लोग शायद यहाँ रुक जाते हैं, ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है। इन नेक्स्ट लेक्चर हमारा 15 मिनट का टॉपिक बचा है, वहां हम लोग कवर करेंगे बेटा जो कि आइडियल सोल्युबिलिटी पैरामीटर है, 10 या 12 मिनट का टॉपिक है, उसको हम लोग वहां कवर करेंगे। ओके, सो होपफुली ये भी वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको अगर पसंद आया तो शेयर करो आपके कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, है ना। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज। तो और कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन मेल मी ऑन दिस मेल आईडी, एंड अगर कोई और डिटेल आंसर चाहिए तो यू कैन व्हाट्सअप मी ओनली। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।